Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I, Ms. Sadia Iqbal, on behalf of Garrison Academy Senior Campus, welcome you all to APSEX Online Support Program. As you all know, this is our fifth week, last day of fifth week, and a very important topic, finding solution of equations through graphical method, right? So we will be ending, inshallah, today exercise 1.5 and chapter number 1, and we are going to have our first assessment of mathematics on Monday, a full complete chapter 1 with examples, right? So listen to today's lecture very carefully. If you do not get, do let me know, do ask, because this topic is very important for long questions, right, from the examination point of view. So let us discuss this. Inshallah, today you'll be able to understand how to find graphical solution of the given equation. I'll be letting you know what does it mean, and then we will be doing question number 4, who has 3 parts, important ones, and please do check the related examples too from the book. So let us get started. What does it mean finding graphical solution of the given equation? Okay, we all know about this graph, that this we used to have this sort of points which we plot and we used to get graph. But the main thing today is learning about graphical solution. Solution क्या होता है? What is solution? When we have equation, let us say x square minus 4 equals to 0. Solution किसको कहते हैं? Solution of equation. अब आप कहेंगे कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड करना है ना, वो सारी वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड करना जो इस इक्वेशन को, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हों, those values would be called solution of the given equation. For example, here you can see in x square minus 1, okay, I'm gonna do it here because यहाँ पे space है. Okay, x square minus 4 equals to 0 अगर मेरे पास ये equation होगी, तो how many solution would be possible of this equation? x plus 2 and x minus 2 कर सकते हैं equals to 0. So x plus 2 is equal to 0 and x minus 2 is equal to 0. So you can see x is equal to minus 2 and x is equal to plus 2. दो सॉल्यूशंस आ गए मेरे पास. सो किसी इक्वेशन के दो हो सकते हैं, किसी इक्वेशन का एक हो सकता है, किसी इक्वेशन का कोई नहीं भी हो सकता. ऐसी भी इक्वेशन हो सकती है हुज सॉल्यूशन वुड नॉट एग्जिस्ट. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या कोई वैल्यू ऐसी हो सकती है, कोई रियल नंबर जिसको मैं यहाँ पे पुट करूँ और उसको 1 में प्लस करके यहाँ 0 आंसर आ जाए? इफ़ यू आर थिंकिंग माइनस 1, नो, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर वुड बी पॉजिटिव, एनी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर. अब ये माइनस 1 स्क्वायर मीन्स प्लस 1, तो प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2. 0 तो आ ही नहीं रहा. इट मीन्स एनी रियल नंबर वुड नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन. इसका कोई रियल नंबर, रियल सोल्यूशन नहीं होगा. ठीक है, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है. सो विच मीन, अब हमें क्या पता चला कि किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? विच सेटिस्फाई दोज वैल्यूज़ विच सेटिस्फाई दैट इक्वेशन. ठीक हो गया. हमें फाइंड करना है ग्राफिकल सोल्यूशन, राइट? वी विल बी डिस्कसिंग ग्राफिकल सोल्यूशन, नॉट अलजेब्राइक सोल्यूशन. तो ग्राफिकल सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जाहिर है थ्रू ग्राफ. वी माइट बी गिवन सम इक्वेशंस लाइक दिस, x इज इक्वल टू सपोज साइन 2x. जब इस तरह की, लाइक ज़रूरी नहीं है कि x इज इक्वल टू साइन 2x, इट कुड बी एनी रियल नंबर, इट कुड बी एनी लीनियर फंक्शन एंड इट कुड बी एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं, दोनों लीनियर हो सकते हैं. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द condition. But here in this class mostly, like you are having one example related to this topic and 3 questions from the exercise, so you have to prepare all of them so that you cannot miss any question from the paper. The thing is here that if you have this case, and I have to find solution of this equation. अब एक को मैंने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स और दूसरे को ले लिया y इज इक्वल टू साइन 2x, बिकॉज दे आर बोथ इक्वल. तो इंस्टेड ऑफ दोनों को y लेने के, अगर मैं एक को y1 और एक को y2 नाम दे दूँ जस्ट फॉर टू डिफ्रेंशिएट देम, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील. सो आप क्या करोगे, एक को आपने y1 कह देना है और एक को आपने y2 कह देना है. आपके पास इसके लिए भी अलग से टेबल बनेगा, आपके पास इसके लिए भी अलग से टेबल बनेगा. सो यू विल बी गेटिंग 2 टेबल्स. और दोनों टेबल्स का जो आंसर होगा, यानी आंसर ऑफ y1 एंड y2, बोथ ऑफ देम शुड बी इन रेडियंस, नॉट इन डिग्रीज. ठीक है,
क्या बताना चाह रही हूँ मैं, यहाँ पे देखें, आपने y1 ले लिया x को और y2 ले लिया sin 2x को, विच मीन्स यू आर गोना हैव टू टेबल्स। अब इन्होंने दोनों कंबाइन करके ये दोनों टेबल, ये y1 का और ये y2 का इकट्ठे बना दिए हैं। आप बेशक ऐसे मत करो, आप इसको अलग से बना लो और फिर इस x के साथ इस y2 को अलग से बना लो, ठीक है, क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। नाउ लेट अस डिस्कस y1 इज इक्वल टू x। वी ऑल नो दैट द वैल्यूज़ ऑफ y1 एंड y2 वुड बी प्लॉटेड अगेंस्ट y एक्सिस, और जो आपका, क्योंकि ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक हो गया। और जो ये x है और ये x है, ये आपके ये हाँ जी, ये डिपेंडेंट हैं और ये x और x आपके इंडिपेंडेंट हैं। यू विल बी पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x टू गेट y1, यू विल बी पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x टू गेट y2, ऐसा ही है। बट इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये कि x की वैल्यूज़ जब आप x और y1 को जब हम डिस्कस करेंगे, यू विल सी हियर x इज़ गिवन इन डिग्रीज़, दोनों में आप डिग्रीज़ में लिख लें। -90, दिस इज़ -60, 30 का डिफरेंस, -30, 0, 30, 60 एंड 90, ठीक है। अब इस जब y1 इज़ इक्वल टू x है, जब आपका x फंक्शन ही y1 है, तो आप उसको 90, -90 और -60 इस तरह से तो प्लॉट नहीं कर सकते। हमें तो y एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करना है, विच मीन्स हमें तो यूनिट्स चाहिए, हमें तो रेडियंस में आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, y1 इज़ इक्वल टू x के लिए, या कोई भी x का अगर फंक्शन होगा, हम उसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? या तो अगर आपको याद है कि -90 कितने रेडियंस के इक्वल होता है, देन इट्स फाइन। नहीं याद तो -90 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस। अब 90 1 ज़ा 90 2 ज़ा, सो इट वुड बी -π/2। लेकिन इसको तो नहीं प्लॉटिंग करेंगे, क्या करेंगे, -π की जगह -3.14 और उसको डिवाइड करेंगे आप 2 से। योर आंसर वुड बी दिस, ठीक है। लेट मी शो यू अनदर वैल्यू। अब फिर से y1 की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि y1 और x इक्वल है, तो ये x है और ये y1 है, दोनों के जो आंसर्स होंगे वो सेम होंगे। दिस वाज -90, हमने डिस्कस कर लिया। अब है -60 डिग्री, कैसे करेंगे रेडियंस में कन्वर्ट, -60 डिग्री इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियंस में करने के लिए। 0 0 कैंसल्ड आउट, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, सो व्हाट इज़ इट, -π डिवाइडेड बाई 3। कैसे इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, पाई की जगह यू विल प्लेस 3.14 डिवाइडेड बाई 3। इसको कैलकुलेटर से आंसर लेकर आएंगे तो इट वुड बी 1.04, 2 dp तक आपने आंसर लेके जाना है, 2 dp, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। -1.04 इज़ द आंसर, ये देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये मैं डिटेल में जानबूझ कर डिस्कस कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए इजी हों। ओके, नाउ दिस वाज -90, दिस वाज -60, नाउ दिस इज़ -30। -30 को हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। 0 0 कैंसल्ड आउट, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, सो -π डिवाइडेड बाय 6, -3.14, पाई की जगह 3.14 आपने कैलकुलेटर में पुट किया, डिवाइडेड बाय 6, कैलकुलेट किया इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, वी गॉट -0.52 दिस वैल्यू। अब 0 पे जाहिर है, 0 को जब आप 0 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली यू आर गोना गेट 0, सो 0 डिग्रीज इज इक्वल टू 0 रेडियंस, ठीक है। और जो बाकी वैल्यूज़ हैं, जैसे पाई बाय 6, मतलब लाइक ये दिस वाज 30 डिग्री, सो -30 और +30 जाहिर है इनके इक्वल आंसर्स आएंगे, क्योंकि हमने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो अप्लाई किया नहीं, वी आर जस्ट टेकिंग इट एज इट इज़, x को x ही ले रहे हैं, सो दैट्स वाई दीज वुड बी योर आंसर्स, द सेम विदाउट माइनस साइन, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं y2 की, दिस वन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें आपका x आपको एंगल दिया हुआ है डिग्रीज़ में, ठीक है। उसी तरह से x आपको गिवन है, आई एम सॉरी, x हमें गिवन है, इसको इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, x हमें गिवन है डिग्रीज़ में -90, -60, -30, 0, 30, 60, 90। ऑल यू हैव टू डू इज़ पुट देम इन दिस इक्वेशन, किस में, y2 इज़ इक्वल टू साइन 2x, दिस इज़ पॉजिटिव, यहाँ पे मैं करती हूँ y2 इज़ इक्वल टू साइन 2x, वेन माई x इज़ दिस वन -90 डिग्री, then y2 would be sin of 2 times -90 डिग्री। कैलकुलेट करें इसको, पहले 2 और 90 को मल्टीप्लाई करें, विच वुड बी -180, एंड साइन ऑफ दैट थिंग with your calculator would be 0, so y2 would be 0. Look at the next value, ये वाली, ये -90 है तो ये -60 है, गैप हमेशा इक्वल लेना है। अच्छा जी, तो साइन ऑफ 2, मतलब ये y2 की मैं वैल्यू निकालना चाह रही हूँ एक्चुअली,
y2 इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 2x। मैं इसके लिए जो कि -60 है, आई एम गोइंग टू पुट -60। कैलकुलेट करेंगे, पहले 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर लें, या ऐसे ही लिख लेंगे, आपको कैलकुलेटर डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। सो इट वुड बी -1.04 लाइक दिस। इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सॉरी, नॉट लाइक दिस, इट वुड नॉट बी दिस, इट वुड बी दिस। दिस इज़ y2, this would be your answer. Similarly, for -30 degree, this would be your answer. For sin 2 times 0 is 0, so sin of 0 would be 0. ये हम फर्स्ट ईयर में बड़े डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब टेबल अगर क्लियर हो गया है, रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ वेरी सिंपल। होगा क्या, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि जब आप दो फंक्शंस को, लाइक दिस इज़ x एंड दिस इज़ sin 2x, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो फंक्शन होता है, जो ग्राफ होता है, दैट इज़ ऑलवेज कर्व, ठीक है, दैट वुड नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन। सो और x जो है ये हमें पता है लीनियर फंक्शन है, तो इसका ज़ाहिर है इस लाइन किस्म की इसकी एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अब इन दोनों का ग्राफ जो कर्व्स हैं एक दूसरे को जहाँ पे, अब ये x जो है y1 इज इक्वल टू x, इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, ठीक हो गया, स्ट्रेट लाइन। और sin 2x का ग्राफ डेफिनेटली इट वुड बी, सॉरी ऊपर से जाना था, और साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यूं, सपोज टू कम फ्रॉम दिस साइन, कुछ इस तरह से। देन यू विल सी जिन पॉइंट्स पे, जितने पॉइंट्स पे आपकी ये वाली जो y1 इज़ इक्वल टू x का ग्राफ है और ये है आपका y2 इज़ इक्वल टू साइन 2x, ये दोनों कर्व्स जितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को टच करके गुजरेंगे, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे टच किया जा रहा है, दोज पॉइंट्स, दोज टचिंग इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वुड बी योर सोल्यूशन। आपकी बुक में दो, इन्होंने एक ही आंसर दिया हुआ है विच इज़ x इज इक्वल टू 0। अभी हम ड्रॉ करके देखेंगे, प्लॉट करके देखेंगे, सो यू कैन गो विद दिस टू। बट अगर आपका बड़ा प्रिसाइजली और बड़ा अच्छा सा ग्राफ बन रहा है तो 54 प्लस और -54 पे भी ये इसको कट करता है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द फर्दर प्रोसीजर। पहला प्रोसीजर हमारा पहला क्या प्रोसेस था कि एक को आपने y1 लेना है, दूसरे को y2 ले लिया, फिर उसके बाद दोनों की वैल्यूज़ निकालनी हैं फॉर x, फॉर एंगल्स, फॉर डिग्रीज़। आपने इसके आंसर्स भी निकालने हैं फॉर डिग्रीज़, इसके आंसर्स भी निकालने हैं फॉर डिग्रीज़, लेकिन इसके आंसर्स जो हैं, जो कि लीनियर फंक्शन है आपका, उसके आंसर्स डिग्रीज़ में नहीं होने चाहिए, उसके आंसर्स रेडियंस में होने चाहिए, और इसका आंसर तो ऑटोमेटिकली रेडियंस में आएगा, क्योंकि साइन ऑफ 2x, मतलब जो भी साइन कॉस टैन, जब भी ये फंक्शन या इनके को रेशोज़ अगर किसी भी डिग्री पे अप्लाई होते हैं तो हमें आंसर हमेशा डेसिमल्स में यानी रेडियंस में मिलता है, ठीक है, ऑलरेडी। सो इसलिए उसको हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वी विल बी वर्किंग ऑन दिस, वही पाई वाला रेडियंस में कन्वर्ट करना। ये पहला पार्ट था ड्राइंग, लाइक आपका टेबल, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस, डिग्रीज विल बी टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वी ऑलरेडी नो कि हम यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका होगा, जो आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये आपकी डिग्रीज होंगी, यानी 0, 30, हमेशा डिफरेंस इक्वल लेना, 60, 90, दिस वुड बी -30, -60, -90, लेट अस से। बोथ y1 एंड y2 विल बी प्लॉटेड ऑन द सेम ग्राफ अगेंस्ट सेम एक्स एक्सिस, यानी अब y1 भी इसी पे ग्राफ पे प्लॉट होगा, y2 भी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, यानी मीटिंग पॉइंट ऑफ y1 एंड y2 इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन थ्रू ग्राफ। अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं किया, ये वाली लाइन है आपको जो नज़र आ रही है, ये वाली, ये आपकी लाइन है y1 इज़ इक्वल टू x की। सिंपली ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू प्लॉट दोज पॉइंट्स जो हमने निकाले हैं टेबल से, ठीक है। और जो ये आपका कर्व आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, दिस इज़ ग्राफ ऑफ y2 इज़ इक्वल टू साइन 2x विच इज़ फ्रॉम द सेकेंड टेबल, ठीक है। और आप देख सकते हो ये यहाँ पे भी कट कर, सॉरी यहाँ पे भी कट कर रहा है, ये वाला यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो होने तो ये तीनों ही पार्ट्स आपके, ये तीनों पॉइंट्स आपके आंसर चाहिए, लेकिन आपकी बुक में इन्होंने लिखा हुआ है जस्ट x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू यानी 0 डिग्री पे जो हैं ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस वुड बी सोल्यूशन। इवन इफ़ अगर आप इसको एक्यूरेटली करेंगे, आप देखेंगे इसका आंसर आएगा +54 डिग्री, और ये वाला जो होगा दिस वुड बी -54 डिग्री, अगर बड़ा एक्यूरेटली आपका बना तो। एक आंसर ये, एक आंसर ये और एक आंसर ये। इवन अगर आप पेपर में सिर्फ ये भी लिख देते हो, इट वुड बी फाइन।
ठीक है, और आंसर लिखेंगे कैसे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बोथ द ग्राफिक, ये मैं इसको जूम इन करती हूँ, both the graphs intersect each other at x is equal to 0, so the graphical solution is x equals to 0. So that's how you're going to do this. Let us do one more part in detail. Okay, now this is the second part. Look at this again. One equation is linear, one is ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट। y1 को ले लिया x/2, जहाँ पे हम पाई लेंगे 3.1416, 3.14 तक भी इनफ है, और y2 को आप लोगे इसको cos x को, और इसमें आपको बताया है कि पाई आप लोगे 180 डिग्री यानी डिग्रीज़ में, ठीक है। इस तरह से करने की नहीं भी ज़रूरत, आपको बता तो दिया है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इस फ़र्क ये है कि इसमें उसमें था y1 इज इक्वल टू एक्स, इसमें y1 इज इक्वल टू एक्स नहीं है, y1 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2, यानी सपोज़ आप x ले रहे हो -60 डिग्री और आपका y1 आपने फाइंड करना है -60, दिस इज़ -60 बेसिकली। -60 को आप रेडियंस में कन्वर्ट करो, -60 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, 0 कैंसल्ड आउट, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, तो इट इज़ -पाई डिवाइडेड बाई 3। अब पाई की जगह आप पुट करें -3.14 और इसको 3 से डिवाइड कर लिया, यू गॉट दिस थिंग -1.04। अब ये तो पाई बाई 3 का आंसर है, -पाई/3 का। यू वॉन्ट y1 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो जो इसका आंसर आएगा यू विल बी डिवाइडिंग दिस आंसर बाय 2, गेटिंग इट। ये देखें, दिस इज आंसर ऑफ x, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे फॉर दिस, जो 2 से डिवाइड करेंगे वो होगा -0.52। सपोज़ ये होता y1 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 3, तो जो आपका यहाँ पे x का आंसर आता आप उसको इस y1 के लिए 3 से डिवाइड करते हैं, वो आपका आंसर होता है। आई होप यू गॉट इट। ये चीज़ बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। x के लिए आप डिफरेंट लेंगे और इसके लिए आप डिग्रीज़ लेंगे y2 के लिए, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फ़र्क सिर्फ क्या है, उसमें y1 इज इक्वल टू एक्स था, यानी जो ये आंसर्स आ रहे थे वही हमारे आंसर्स थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इन आंसर्स को आपने फर्दर 2 से डिवाइड करना है, बिकॉज दिस इज़ x/2, 2 से डिवाइड करके आपने अपने आंसर्स लिखने हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम। और बात करते हैं y2 की, सो y2 इज़ ऑलरेडी y2 इज़ कॉज ऑफ x, वेरी सिंपल। x में आप एंगल्स पुट करते जाएं, -90 को x की जगह पुट किया तो कॉज ऑफ -90 कॉज 90 0 होता है, इट वुड बी 0। कॉज ऑफ -60, कॉज अपने नेगेटिव को खा जाते हैं, सो इट वुड बी पॉजिटिव आंसर। कॉज ऑफ 60 होता है 0.5, दैट वुड बी योर आंसर। आपको कैलकुलेटर सारी वैल्यूज़ दे देगा। जब ये वैल्यूज़ मिल जाएँ आपको वेरी सिंपली, देन यू विल बी प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ दीज टू ऑन द सेम पेपर, ठीक है। ये जो कर्व है, दिस कर्व इज़ ऑफ कॉज ऑफ x, और ये जो लाइन है दिस इज़ ऑफ y इज़ इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये उसकी लाइन है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक वन थिंग, यू कैन सी दीज टू ग्राफ्स, यानी एक जो ये कर्व है, एक जो हमारे पास ये कर्व है, थोड़ा सा फिर भी टेढ़ा हो गया, और एक जो ये लाइन है, वी कैन सी दीज टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होगा ये वाला, दिस वुड बी योर सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है। अगर आप इसको एक्सटेंड करते भी इन केस इसको भी एक्सटेंड करते, तो आप देखिए थे कि दोबारा किसी भी और पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट ना करता, यहाँ से ये ऊपर जाता फिर, क्योंकि ये ये पीरियोडिक होते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट दिस थिंग कि ये कर्व्स में पीरियोडिक होते हैं, और ये इसीलिए हमने यहाँ पे एरोज़, ये आपने एरोज़ इसीलिए शो करने हैं, इधर भी और इधर भी, बिकॉज इनकी डोमेन रियल नंबर है, तो ये चलते जाएंगे, ठीक है, दे वुड नेवर स्टॉप। एनीवेज, सो दिस वुड बी योर सोल्यूशन। यू कैन आइदर टेक x इज इक्वल टू, किस पे है, ऑलमोस्ट पाई/3 यानी 60 डिग्री, इस पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप इसको पॉइंट की सूरत में भी लिख सकते हैं और सिर्फ x की सूरत में भी लिख सकते हैं। पॉइंट की सूरत का मतलब है कि 60 डिग्री एंड y एक्सिस पे वो क्या है 0.5, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और सिंपली x इज इक्वल टू पाई/3 भी लिख सकते हैं, और सोल्यूशन सेट की बात हो रही है, सोल्यूशन की बात हो रही है, और x इज इक्वल टू 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, यानी वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका अगर सिर्फ आप x भी लिख लेते हैं, यू आर करेक्ट, ठीक है। दिस वुड बी द सोल्यूशन, मस्ट लिखना है, और स्केल इज़ अ मस्ट, अपने अकॉर्डिंग जो आपने स्केल रखा है उसके मुताबिक आपने स्केल को भी ज़रूर मेंशन करना है।
नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट 2x एंड tan x, तो y1 इज इक्वल टू 2x अगेन, और y2 हमारा हो जाएगा tan x। y1 के लिए आप बिल्कुल उसी तरह से टेबल बनाएंगे, क्योंकि वो 2x है तो आप एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट करके आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे फॉर ईच ऑफ देम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे बिकॉज दिस इज़ 2x, राइट। लेकिन जो y2 है आपका, y2 इज़ tan ऑफ x, तो आप ये कोशिश करेंगे क्योंकि tan ऑफ 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है, इट इज़ इन्फिनिटी, ये इट इज़ अनडिफाइंड, राइट। और अनडिफाइंड का आपको याद है मैंने बताया था कि अनडिफाइंड पे सपोज मैं tan का ड्रॉ कर रही होंगी, तो ये दिस इज़ लेट से -90 एंड दिस इज़ लेट से +90, तो जब आप tan का ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, चूँकि वो 90 पे वो इन्फिनिटी होता है, इसलिए हम उस पर ऐसे करके ऐसे करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं इन्फिनिटी पे, ठीक है। बाकी पॉइंट्स आप अकॉर्डिंगली प्लॉट करेंगे जो जो होंगे। लुक एट दिस। अब यू वुड बी थिंकिंग कि ये क्या है, यहाँ पे क्यों स्टॉप हो गया, बिकॉज -90 पे इट्स वाज सपोज टू बी दिस लाइन, ये उससे आगे क्रॉस नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे ये, इसलिए हम यहीं पे स्टॉप हो गए, ठीक है। ग्राफ अजीबो गरीब लग रहा है बल्कि लेकिन टू ड्रॉ इट इट्स वेरी सिंपल टू बी ड्रॉन, वेरी सिंपल। आपने ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन, डेफिनेटली दिस इज़ ऑफ y1 इक्वल्स टू 2x, और जो ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, आप tan का ग्राफ ड्रॉ कर चुके हो फर्स्ट ईयर में, काफ़ी क्वेश्चंस थे tan के, तो ये tan का ग्राफ है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से ही है, ये tan का ग्राफ है। ये कर्व जो है यह आपका है y2 इज़ इक्वल टू tan ऑफ x, और जो ये लाइन है ये है आपकी y1 इज़ इक्वल टू 2x। आपने ड्रॉ किया, यू सॉ दैट दे बोथ इंटरसेक्ट ओनली ऑन दिस पॉइंट, और यहाँ पे x क्या है आपके पास 0, सो दिस वुड बी योर solution. Let us check it out. Both the graphs intersect each other at a common point where x is equal to 0. So the graphical solution is x equals to 0. अब मैं आपको, चूँकि we are done with the questions, now I'm going to tell you one thing from the table. टेबल से फर्स्ट ईयर में मैंने ये बात बताई थी कि टेबल से ही आपको आंसर मिल जाएगा, पता चल जाना चाहिए। This was x 0 and this was also 0. For what? For x is equal to 0. जब दोनों आंसर्स, जिस पॉइंट पे दोनों आंसर्स y के सेम आ जाएं, डेफिनेटली दैट वुड बी कॉमन पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर 0 था। इससे पीछे देखते हैं किसका आंसर सेम है, y1 की बात हो रही है। दिस इज़ 0, दिस इज़ समथिंग एल्स, दिस इज़ समथिंग एल्स। नाउ दिस वुड बी कंपेयर्ड विद दिस वुड बी कंपेयर्ड विद दिस विद दिस, क्योंकि ये -60 से शुरू हो रहा है। अच्छा जी, दिस इज़ -0.5, ये तो डिफरेंट है, क्रॉस हो गया। ये भी डिफरेंट है, ये 0 है, ये 1 है, क्रॉस हो गया। ये 0.26 है, ये 0.87 है, क्रॉस हो गया। 0.52 है, ये 0.5 है। ठीक है, तो जो बहुत ही नियरेस्ट हैं ये 0.52, और इस टाइम पे x क्या है आपका 60 डिग्री, ठीक है, और यही हमारे पास था, यू कैन सी। सो दैट्स हाउ यू गोना डू दिस। और फर्स्ट वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी देख लें, ये y1 y2 दोनों सेम है फॉर दिस। और नाउ यू विल बी थिंकिंग कि हम तो, मैं तो 54 भी कह रही थी, 54 डिग्रीज, चूँकि हमने डायरेक्ट 60 से -30 पे गए, -60 से -30 पे गए, ठीक है, इन बिटवीन, इसीलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बट वी आर नॉट एक्यूरेट, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि ये क्या एंगल होगा, क्योंकि हमने उस हिसाब से इसको लिया नहीं। दैट्स वाई इवन इफ़ यू डोंट राइट दीज टू, इट्स फाइन, दिस वन इज़ कंपल्सरी, ठीक है। आई होप यू पीपल आर क्लियर अबाउट दीज क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इसकी आज ही प्रैक्टिस करिएगा एंड डू सेंड देम अक्रॉस, and inshallah assignment is these 3 parts. Assessment of first chapter complete with all the examples and proofs, theorem is very important, so it would be inshallah taken on, it would held on Monday inshallah. So wish you all the very best. Still, if there is any problem, you are most welcome to ask. Allah Hafiz.